नमस्कार सभी को नमस्कार। जय हिंद। दिस इज डॉक्टर पी.एस. वालिया। Since 1973 I am in teaching profession. I am teaching biology. I did MSc in 73. Along with MSc, after that I have done MA in sociology and post graduation in education also. I have been awarded PhD in botany and PhD in education. PhD in botany I have been awarded by Agra University and PhD in education by University of Rajasthan. Dear friends, I am proud to say this thing that I am pure academic person having excellent academic record. आदमी को अपने पर गर्व भी होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए और मैं अभिमान महसूस करता हूँ, गर्वित महसूस करता हूँ to say this thing that even in MSc I had topped the university and last examination I did from University of Rajasthan in 1997. I stood first in merit and I have been awarded this merit certificate and gold medal by university. A trust, Piramal Trust, is associated with University of Rajasthan. That trust has given one more, that is extra gold medal for my performance at post-graduation level in education. Just after doing my MSc, I served in Government College Agra. I was selected by UPPSC and since long, that is in Kendriya Vidyalaya Sangathan, I have been selected PGT in 1979 and up to 1997 I had been PGT Biology. A long service, about 18 years I had given as PGT. After that I have been selected at national level as principal, administrator and I served Kendriya Vidyalaya Sangathan for more than 15 years as administrator. I am really proud to see this thing for my meticulous services. My services have been identified, recognized, and in this recognition, the competent authority, they may be the chairman, so-called brigadier or group captain of the station, they have recognized my services. I got national award, that is Kendriya Vidyalaya National Award, and I have been appreciated by President Pratibha Patil. Yes, after my retirement, you see, in 2012, I have been associated with coaching industry because I want to pass my time in the most effective way. I had been in touch with my subject. I was doing updation of the subject, the latest technology in teaching industry, that is I was well acquainted with this. All these have attracted me to come in coaching class so that my potential can be utilized to the optimum. I have been selected in 2012 after my retirement. At national level I have been selected in Akash coaching industry, Akash Educational Services, and I have been posted there at Chandigarh, then to Jaipur, and then I have been posted to Bangalore. There I served as academic head. After that, because of my personal reasons, I had to leave Akash, a wonderful and pace-setting institute. After that, I had been invited by, that is an institute there in south, near to Madurai, that is this is Tirunelveli, fascinating one. In one district, one city, I have not seen 3 medical government colleges are there in that. It is known as Cambridge of South. In the same city, that is Tirunelveli, there are 3 government medical colleges. I have been invited, that is by one institute, and in a month for about 12 to 15 days I used to go there and I was really elevated there. My services was being identified and was being appreciated by one and all. After that, in this corona period, I got an opportunity to be here at Gangapur city, DS Science Academy. यहाँ का academic atmosphere
यहाँ के स्टूडेंट्स का जो जुनून है, जो वो इज़्ज़त बख्शते हैं, टीचिंग टॉट के जो रिलेशन हैं, जो अमिकेबल रिलेशनशिप्स यहाँ डायरेक्टर साहब ने दिए हैं, आई रियली सल्यूट ऑल दिस। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के बच्चे के जो रिज़ल्ट्स हैं, दीज आर अट्रैक्टिंग टू वन एंड ऑल, इधर दीज आर रिजल्ट्स ऑफ CBSE और RBSE, or these are the results of competitive examination, that may be NEET or that is JEE examination. Wonderful results, even at NTSE level they are getting, that is national results in such a small town. Really the students are wonderful and the faculty and the atmosphere is very, very amicable one. So dear friends, regarding biology teaching and learning, you see biology means that is botany and zoology, both are included in that. And you know, in NEET examination 50% weightage is there in biology. Regarding biology, some misconceptions are there, some myths are there. Usually society में लोग कहते हैं कि biology learning is just mug up of subject, रट्टा मारो biology याद हो जाती है। ऐसा नहीं है friends, less than 5% ही subject का कुछ ऐसा portion है जहाँ आपको याद करना पड़ता है, जहाँ आपको mug up करना है। You know that almost all the names of organism, plants या animals के जो नाम हैं वो लैटिन लैंग्वेज से हैं और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है याद करना, लेकिन दैट इज़ मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द बायोलॉजी, लेट दिस इज़ स्ट्रक्चरल पार्ट, लेट दिस इज़ फिजियोलॉजी पार्ट, वो तो अंडरस्टैंड करना होता है। तो मोर देन 95% पार्ट ऑफ द बायोलॉजी इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। तो दोस्तों, जो ये डिफ़िकल्ट पोर्शन है जिसको हम मगअप करने वाली बात करते हैं, वो तो आपको याद हो ही जाएगा। आपको दोस्तों के नंबर याद हो जाते हैं, बड़े शहरों में आपके दोस्त रहते हैं, उनकी गली का नंबर याद हो जाता है, गर्लफ्रेंड के फ़ोन नंबर आपके टिप्स पर होते हैं। तो इन नामों को यदि आपने सक्सेस प्राप्त करनी है बायोलॉजी में, यू हैव टू गेट गुड मार्क्स एंड यू नो इन सिलेक्शन biology play very important vital role. More than 50% weightage is there for biology. तो that's why you have to remember these names. ऐसे नाम जो आपके डेली रूटीन में आते हैं। आपने क्या पिया? आपने चाय पिया, मैंने कॉफ़ी पिया। किन प्लांट से चाय और कॉफ़ी आती है? आपको कौन सी सब्ज़ी पसंद है? मुझे टमाटर का सूप पसंद है, आपको पोटैटो की सब्ज़ी पसंद है, किसी को बैगन की सब्ज़ी पसंद है। तो कांट वी रिमेंबर दीज नेम्स? यदि हम उनको डेली अपने डायरी में थोड़ा सा नोट कर लें और कौन कौन से प्लांट्स हमारे साथ में आते हैं। हम यहाँ गंगापुर सिटी में हैं, आप आगरा में हैं, कोई भरतपुर में है, कोई राजस्थान में है और कोई इससे बाहर है। आपके आसपास कौन कौन से प्लांट्स हैं, किन किन प्लांट्स का हम कल्टीवेशन करते हैं, कौन कौन से एनिमल्स हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। तो क्या एक एक दो दो एनिमल्स के नाम हम डेली बेसिस पर याद नहीं कर सकते? जो एनिमल्स हमको फ़ायदा पहुंचाते हैं, जो माइक्रोब्स हमको नुकसान पहुंचाते हैं, क्या उनके हम नाम याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर ज़ील है, यदि जुनून है, तो ये जो मगअप करने वाला पोर्शन है, इजीली हम उसको आसानी से उसको हम याद कर सकते हैं। राइट? तो मगअप करने वाली बात ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। तो ये जो एक मिथ है, जो एक ये सोच है कि बायोलॉजी एक इस तरह का सब्जेक्ट है कि जिसको याद ही करना है, याद तो करना है, याद करने में अंडरस्टैंडिंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बट मेजर पोर्शन ऑफ द बायोलॉजी, जैसे मैंने फिजियोलॉजी की बात किया, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। नाउ दैट इज़ व्हाई आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एंड व्हाई आई एम गोइंग टू दैट इज़ प्रेजेंट माई सेल्फ अप्राइजल। मैं आत्म मूल्यांकन आपके सामने क्यों प्रस्तुत कर रहा हूँ? फ्रेंड्स, I feel really proud and confident to increase my area of interaction, and that's why I had decided to release my videos on YouTube, because YouTube is a very wide and vast platform. And before this मैंने सोचा है कि वीडियो रिलीज़ करने से पहले मैं एक सेल्फ अप्राइजल, एक अपना आइडेंटिफिकेशन, एक अपना आत्म मूल्यांकन आपके सामने प्रस्तुत करूं और अपनी जर्नी के बारे में फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड एंड वेयर आई एम एट प्रेजेंट वर्किंग, ये थोड़ा सा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। यही इसी सोच का परिणाम है कि मैंने ये आत्म मूल्यांकन आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिससे कि जो मेरे वीडियो के जो देखने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा परिचित हो सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप एक जुनून के साथ में अपने प्रोफेशनल स्किल को डेवलप करें। वी आर हियर टू डेवलप योर स्किल्स। इंटेलिजेंट आप हैं, हार्ड वर्किंग आप हैं, सबमिसिव आप हैं। एक स्किल डेवलप करने का काम हमारा है एंड आई एम आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोग्राम। मैं यही चाहता हूँ
कि प्रोफेशनल स्किल्स के साथ आप एक अच्छे इंसान बने। यू हैव टू ट्राई टू बी अ गुड पर्सन, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एज बैकबोन ऑफ सोसाइटी, यू हैव टू बी विद स्टील नर्व, क्योंकि आजकल परिवेश तो बड़ा विषाक्त है। इस विषाक्त परिवेश में सफलता प्राप्त करना और अपने को साबित एक अच्छे इंसान के रूप में करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। माय डियर चिल्ड्रन, आसमान ऊंचा नहीं है और नहीं किसी एक सूरज से बंधा है। आप चाहें तो औस के पढ़ते पढ़ते समुंदर को अपनी छोटी बाहों में समेट सकते हैं। ध्यान रहे, इतने ऊंचे उठो, खूब ऊंचे उठो, आसमान की ऊंचाइयां छुओ, लेकिन उतने ऊंचे मत उठो कि ज़मीन पर खड़ा हुआ आदमी आपको बौना दिखाई देने लगे। आप ऊंचाई के साथ साथ विस्तार भी प्राप्त करो। माय डियर चिल्ड्रन, एक जुनून के साथ में यदि आप आते हैं, आपको ध्यान रखना है कि बाज ऐसे ही बाज नहीं बन जाता है, वो किसी मुंडेर पर फुदक कर बाज नहीं बनता है। बाज की जो मदर होती है उसको उठाती है, 12 किलोमीटर ऊंचे उठाती है और वहाँ से छोड़ देती है। वो फड़फड़ाता हुआ इस डर में कि अब मैं मर जाऊँगा, लेकिन मरने और जीने की इस वहाँ पर स्थिति में वो अपने पंख खोलता है कुछ दूरी जब रह जाती है ज़मीन से, और इस क्रिया को उसकी माँ कई बार दोहराती है, तब वो बाज बनता है। बाज बनने का मेरा अभिप्राय कोई शिकारी पक्षी बनने से नहीं है। आप जहाँ भी हों सफलता के शिखर छुएं, अपनी सफलता प्राप्त करें, और इस सफलता प्राप्त करने के पीछे यदि आप में जुनून है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके हाथ अपनी पूजा में, अपने अरदास में इस प्रकार से जुड़े, आप नमाज में सजदा ऐसा करें कि आप वास्तव में सही अर्थों में भारतीय हो जाए, सही अर्थों में आप एक अच्छे इंसान बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर PS वालिया, दैट इज़ अ फैकल्टी मेंबर हियर एट DS साइंस अकेडमी, आपको शुभकामनाएं देता हूं, एंड आई विश यू अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। ट्राई टू बी अ गुड मैन, ट्राई टू बी अ गुड पर्सन, ब्रिंग laurel to your family, to society and to the nation. Thank you. Jai Hind.